Good evening. Please welcome with a round of applause Mr. Anil Bokil and all the distinguished dignitaries on the dais. Good evening, Pimpri Chinchwad. It's been 70 years of independence of our country. During this 70 years, were we able to achieve the economic development in full strength? Now, that's a question that needs a lot of discussion and deliberation. During this journey, our economy witnessed for this program. Looking at the mix of the audience today, I would prefer to conduct this entire show using three. किती लोक मराठीमध्ये कम्फर्टेबल आहेत? ओ माय गॉड, सगळेच. म्हणजे हिंदीची आवश्यकता तशी काही याच्यामध्ये मला वाटत नाही. सो वी विल स्टिक टू इंग्लिश अँड मराठी. No, you are not comfortable with Marathi. Okay, so never mind. I would use Hindi also in between. कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मंच पर उपस्थित सारे मान्यवरों को मैं ये विनती करता हूँ कि भारत माता की प्रतिमा पूजन पुष्पार्पण करके करें. This is our auspicious tradition of worshipping Bharat Mata on the occasion of every program. Thank you. I take this opportunity to introduce people and senior citizens in Pimpri and Chinchwad. Please welcome Shri Kailas Murlidhar Kate, Chairman of Devi Ai Mata Seva Mandal, and Shri Bharat Dhondiba Jachak, Member of the Mandal. Now, merely a corporate employee, he is an entrepreneur in full sense of the word. He owned a small-scale unit named Dot Precision, which specializes in import substitutes. Dot projects. One major example is Tiny Industries Scoop Industrial Estate, an industrial estate formed by 75 small entrepreneurs, where he is the founder chairman. This estate has a provision for 150 sheds in MIDC in Chikhaltana of Aurangabad. 35 out of this. While working on this project, he developed a deep interest in current economic system, challenges faced like lost jobs, business. Of the root causes, he has come up with a solution considering the 4 dimensions, namely taxation, parallel economy, ease of cash transactions, and the lack of capital formation due to poor use of banking system. He developed the Arthakranti solution of numerous entrepreneurs, chartered accountants, economists, artists, and students are part of Arthakranti movement. Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, Shri Nitin Gadkari ji, Shri Sharad ji Pawar, and Shri Narayan Murthy. आपण केलंच पाहिजे. So please put your hands together very generously, very loudly in welcoming Mr. Anil Bokil today on this evening. नमस्ते, मैं अनिल बोकिल. मैं हिंदी में और मराठी में दोनों भी बात करूंगा. अंग्रेजी तो साथ में आएगी थोड़ी. पहले मेरा इंट्रोडक्शन मैं पूरा करता हूं, क्योंकि शायद ये इंट्रोडक्शन के सिवा मेरे लिए आगे चलना थोड़ा मुश्किल होगा. मेरा पूरा इंट्रोडक्शन है, मैं हूं आर के लक्ष्मण का कॉमन मैन.
एक आम आदमी। ये जो अर्थ क्रांति का जो प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरी उपज नहीं है, ये अकेले के दिमाग का खेल नहीं है। बहुत से लोग इसके साथ जुड़े हैं। एक बड़े विमर्श के बाद, एक बड़े चर्चा के बाद, एक बड़े काल के साथ, ये सब समय के साथ ये इवॉल्व हुआ सब्जेक्ट है। करीबन 20 साल हो गए। हम लोग जिस धारा से आ रहे हैं कि अपने देश के सामने इतने बड़े प्रश्न हैं, तो उसके समाधान क्या हो सकते हैं, हम लोग समाधान की खोज में निकले हैं, ना कि प्रश्नों के एनालिसिस के साथ हम हैं। हम समाधान क्या हो सकता है। हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, आम आदमी है। थोड़ी और तरीके से मैं बताता हूं, हम लोग डिजाइनर नहीं है, हम लोग मैकेनिक्स हैं। जब कोई चीज अगर फंक्शन नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, ये ढूंढना हमारा काम है। उसका फंक्शन क्या था, क्या होना चाहिए था, ये हमारा काम नहीं है। जो डिजायर्ड फंक्शन वो व्हीकल नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, कहां ये फेल हो गया है, ये ढूंढना हमारा काम है। मैं पहले आपके सामने हमारी भूमिका रखने से पहले हम क्या चाहते हैं, हम कौन लोग हैं। हम आम आदमी हैं, हम हमारे देश का 130 करोड़ का परिवार मानते हैं, किसी एक को भी दूसरा नहीं। ये सब देश मेरा परिवार है। हम हमारे देश का संविधान और हमारा जनतंत्र पे पूरी श्रद्धा रखते हैं। ये दोनों के परे हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा जनतंत्र और हमारा संविधान, हमारा सबसे बड़ा रिस्पेक्ट ये है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग हर भारतीय के लिए एक डिस्क्रिमिनेशन और करप्शन फ्री लाइफ चाहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड करप्शन फ्री लाइफ, principled, prosperous and peaceful life for everyone, not for a segment. और चौथी चीज जो है, हम लोग कौन से भूमिका से आपके साथ बात कर रहे हैं। अनिल बोकिल कोई व्यक्ति बोल के नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो है हमारी सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जो बड़ी होती है वो है हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट, क्योंकि उसमें अपोजिशन पार्टी भी होती है। संसद से जो बड़ा होता है वो होता है हमारी संविधान, क्योंकि संविधान के दायरे में ही संसद को काम करना पड़ता है, वो उससे और बड़ा स्टेटस है। और संविधान से बड़ा अगर कोई है तो वह है देश का नागरिक, सिटीजन, क्योंकि यह संविधान उसी को अर्पण किया है। हम लोग जो आपके सामने बात कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बोल के आपके साथ आए हैं। ये शेयरिंग है, ये किसी की कमतरता दिखाने के लिए नहीं, कोई व्यक्ति के विशेष के लिए नहीं, कोई सरकार विशेष, कोई भावना नहीं। हम ना तो सरकार के अपोज में है, ना तो उसके सपोर्ट में है। हम लोग जो है प्रोग्राम के साथ है। हमारी धारणा है व्यक्ति ना पार्टी, जो भी बनाएगा वो प्रोग्राम बनेगा। कार्यक्रम क्या होगा, देश का कार्यक्रम की जिसपे हर आदमी को न्याय मिले, उसको एक रास्ता मिले प्रगति करने का। हमारी धारणा ये है। हम लोग मोटिव्स पे काम नहीं करते, हम लोग मीन्स पे काम करते हैं। मैं पहले अर्थशास्त्र की हमारी परिभाषा आपके सामने रखता हूं। अर्थ क्रांति की अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, अर्थशास्त्र ये पैसे का शास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र ये संसाधनों का शास्त्र है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस। अर्थ क्रांति ये मानती है कि भारतीय तत्व ज्ञान में जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, ये शब्द हमें इतना अच्छा नहीं लगता, कर्म और मोक्ष, ये 4 जो मूल पुरुषार्थ है, उसमें धर्म जो होता है वो आदमी का कैरेक्टर है, अंदर का प्रवास है, बाहर धर्म नहीं होता। बाहर जो होता है वो सभी कर्म कांड है, रिचुअल है। जो आदमी के कैरेक्टर पे काम करता है वो धर्म होता है। और हम ये भी मानते हैं कि हर 2 आदमी का धर्म अलग होता है। एक
ही माँ बाप के दो बच्चे एक ही संस्कार के, एक ही आरएनए डीएनए के बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका धर्म अलग होता है, कैरेक्टर अलग होता है। जो कैरेक्टर पे काम करता है वो होता है धर्म, जो शिक्षा उसमें होती है, शिक्षा, शिक्षण व्यवस्था जो काम करती है वो धर्म। हर आदमी का धर्म अलग, भूमिका बदलती है, धर्म बदलता है। अनिल बोकिल भाई बोल के धर्म अलग है, पिता बोल के धर्म अलग है, बेटा बोल के उसका धर्म अलग है। दूसरी भूमिका बदल जाती है, कैरेक्टर का रोल बदल जाता है। कैरेक्टर पे काम करता है वो धर्म होता है, और जो व्यवस्था पे काम करता है वो होता है अर्थ, संसाधन। हमें हमारे कैरेक्टर से जीने के लिए मोटिव मिलते हैं, और उसके लिए संसाधन जो आते हैं वो अर्थशास्त्र से आते हैं। मीन्स, मोटिव और मीन्स, इसमें से प्रक्रिया बनती है, जिसको हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कृति बोलते हैं, प्रक्रिया। वो उद्देश्य और संसाधनों को मिलके होती है, वो होता है काम या कर्म। और वो होने के बाद अगर हमें शांति मिली तो होता है मोक्ष, सेटिस्फैक्शन मिला तो वो मोक्ष। जैसे मेरे पेट की भूख होती है वो मेरा धर्म है, मैं बाहर से भूख ला नहीं सकता, मेरा है, अंदर से आता है, वो मेरा धर्म है। थाली का खाना या अर्थशास्त्र है, वो सबके लिए यही है। भोजन की प्रक्रिया ये काम है या कर्म है, और वो खाने के बाद अगर मुझे सेटिस्फैक्शन मिला तो वो है मोक्ष। मेरे थाली का खाना बहुत अच्छा है लेकिन मेरा पेट बिगड़ा हुआ है, मैंने फिर भी खाना खा लिया, तो क्या मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा? अर्थ अच्छा है, धर्म बिगड़ा है, सेटिस्फैक्शन मिलेगा? मेरा पेट अच्छा है, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन थाली का खाना सड़ा है, खराब हुआ है, अगर मैंने खाना खा लिया तो क्या मुझे शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा? धर्म अच्छा है लेकिन अर्थ बिगड़ा है तो भी सेटिस्फैक्शन, मोक्ष नहीं मिलेगा। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है, भूख भी अच्छी है, लेकिन मेरी प्रक्रिया गलत हो रही है, मैं खाते जा रहा हूं, उदर भरण करते जा रहा हूं, क्या मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा? धर्म, अर्थ और कर्म, ये तीनों का जो बैलेंसिंग होगा, इसके ऊपर सेटिस्फैक्शन या मोक्ष होता है। हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा करते हैं, धर्म शास्त्र के लिए हमें कोई समझता नहीं, ना काम शास्त्र या कर्म शास्त्र में हमें कोई गति है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, तो हम सिर्फ 33.3% पे ही आपसे बात करेंगे। अर्थशास्त्र, हम मोटिव पे बात नहीं करेंगे, हमें नहीं समझता, उसमें काम करने वाले बहुत लोग हैं। हम लोग मीन्स पे काम करते हैं, अर्थशास्त्र पे। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस, और इसमें भी जो तांत्रिकता है जो गलत हो गई है, मैं उसके तत्व ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं कि पैसा कहां गलत हो गया है, क्या ऐसी गलती हो रही है कि जो हमारा 130 करोड़ का परिवार एक नहीं बन रहा है, जात, धर्म, प्रांत, भाषा में हम बिखरते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों एक साथ नहीं होते? हमारा एक धर्म, हम एक ही खून के हैं, एक ही आरएनए डीएनए के हैं। हम लोग एग्रीकल्चर से आए हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, उससे पहले हम एग्रीकल्चर है। वनवास से लेके हम बाहर निकले तो हम कृषि संस्कृति से आ गए हैं। कृषि संस्कृति क्यों? क्योंकि भारत का ये जो हमें एक भूभाग मिला है, जो नेचर ने हमें दिया है, ये क्लाइमेटिकली फेवर्ड भूभाग हमें मिला है, जहां एक बैलेंस्ड मौसम है, बारिश है, धूप है, ठंड भी है, लेकिन वो इतना बेरेबल है। नेचर ने हमें इतनी कृपा दी है कि नेचर के सामने हम बहुत छोटे हैं, नेचर की कृपा पे हम हैं। ये नेचर में एक प्रक्रिया ऐसी है कि जो कोई आदमी अभी तक उसको साध्य नहीं कर पाया, वो होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। एक दाना बोने के बाद 1000 दाने नेचर जो उल्टा देता है, आदमी को ऐसी प्रक्रिया अभी तक खुद को खोज नहीं पाया आदमी। ये है फोटोसिंथेसिस। ये 9 महीने से ज्यादा हमारा सूर्य प्रकाश, उसने हमें ये कैपेसिटी दी है, हमें एबिलिटी दी है। इसकी वजह से क्या हो गया?
इसकी वजह से भारत में इतनी नेचर की कृपा है, बैलेंस्ड क्लाइमेट की वजह से हम कृषि संस्कृति की तरफ आगे आ गए। नेचर ने जो हमारी मूलभूत जो जरूरतें थी, रोटी कपड़ा मकान, आसान कर दिया। नेचर से लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, नेचर की कृपा में हम बड़े हो गए। बहती नदियां, पेड़ पौधे, बायोडाइवर्सिटी, यहां नेचर के साथ झगड़ा करने का संबंध ही नहीं आया। नेचर के कृपा में हम लोग बड़े हो गए। और इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से हमारा दिल बहुत बड़ा हो गया और नेचर से झगड़ा करना ही नहीं था किसी के साथ, इसलिए दिमाग छोटा हो गया, उसकी जरूरत ही नहीं थी। दिल बड़ा होने की वजह से हमारे इसमें कोऑपरेटिव का स्पिरिट आ गया, सहकार। हम लोग कोऑपरेशन की तरफ जाने लगे। हमारे दिल इतना बड़ा हो गया कि दुनिया को हम बोलने लगे, हमारे घर आ जाइए, हमारे घर में सब है। हम लोग अगला स्पिरिट पे है। इसी वक्त एक और मानवीय संस्कृति डेवलप हो रही थी यूरोप में, जहां क्लाइमेट बिल्कुल एडवर्स था, हॉस्टाइल। 9 महीने की ठंडी, 9 महीने की ठंड, सूर्य प्रकाश का नाम ही नहीं। तो वहां बायोडाइवर्सिटी का था ही नहीं कुछ। तो वहां मानवीय अस्तित्व के लिए नेचर से झगड़ा करना पड़ता था। वहां की संस्कृति नेचर से झगड़ा करके, नेचर के रौंद कर वहां खड़े हो गए लोग। और जो ऊर्जा की जरूरत थी इसने ठंड में जीने के लिए, ऊर्जा की खोज में वहां तंत्र ज्ञान डेवलप हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। हंटर और गैदरर, ये नेचर की एडवर्सिटी से वहां के आदमी का दिमाग बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि वो लड़ता, नेचर से लड़ता, उसने खुद का अस्तित्व संभाला। वहां दिमाग बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया, क्योंकि इतना मेहनत से कमाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का दिल नहीं होता था। अरे मेरा आज का हो गया, कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहां दिमाग बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। यहां उल्टा था, यहां दिल बड़े हो गए, दिमाग छोटे हो गए। वहां तंत्रज्ञान तैयार हो गया, भारत में तत्व ज्ञान आ गया। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन फिलॉसफीज, वहां आदमी को ताकत मिली, यहां आदमी को जीने को दिशा मिल गई। वहां इंजन बना, यहां स्टीयरिंग बना गाड़ी का। हम लोग अलग है, हमारे अर्थशास्त्र की धारणाएं अलग है। हम लोग जो कृषि संस्कृति से आए हैं, बड़ी राजा जिसको बोलते थे, कृषि राजा, ये क्यों था? हमारे यहां जो गांव चलता था, हमारा किसान सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं करता था, वो तो अनाज था ही। लेकिन हमारे सभी जो व्यवहार चलते थे गांव में, जिसको 12 बलूते बोलते हैं मराठी में, 12 सेवाएं, वो अनाज पे चलती थी। यानी वो जो विनिमय चलता था, समाज का विनिमय, वो किसान के ऊपर था, इसलिए किसान राजा था। उसके सिवा वो 12 सेवा चल ही नहीं सकती थी। किसान सिर्फ खाने के लिए नहीं अनाज बनाए पैदा करता था, वो विनिमय के लिए भी एक मीडियम तैयार करता था, वो अनाज था। और इसलिए किसान के सिवा यहां कोई था ही नहीं। किसान ये राजा था, इसी को बोलते हैं बलि राजा। काल के प्रवाह में बदल गया। हम भूमंडलीकरण, जागतिकीकरण के एक व्यवस्था में आ गए, और ये जो विनिमय का माध्यम था अनाज, वो शिफ्ट हो गया पैसे की तरफ। हमारा किसान ये समझ ही नहीं पाया, ना किसान समझ पाए, ना यहां तो बुद्धिजीवी समझ पाए। किसान को लगा कि अभी मेरी क्या है, अभी मेरे हाथ में क्या बचा है, क्योंकि गांव की तो सेवा अभी पैसे पे चलने लगी। तभी भी उसका अभी अंदर का वजूद जिंदा था, अस्मिता थी कि अभी भी मैं देश का पेट पाल रहा हूं, मैं अभी भी अनाज पकाता हूं, अनाज बनाता हूं। लेकिन यह बाजार व्यवस्था ने उसको भी बदल दिया। बाजार में अनाज को भी एक कमोडिटी कर दिया। आज इस किसान ने कितना भी बनाया तो बाहर से, कनाडा से और अमेरिका से गेहूं आने लगा। यहां किसान बोलता है कि मेरे लागत से मुझे 25 रुपए से नीचे नहीं परवड़ता, लेकिन वही गेहूं मार्केट में आज 22 रुपए से कनाडा से और अमेरिका से आ रहा है। यहां किसान हार गया। वो खुद को
खुद को मजबूर समझने लगा। ना तो अभी मेरे हाथ में ना विनिमय बचा, ना लोगों का पेट बचा, ये तो सभी मार्केट के हाथ में चला गया। आज की हालत, ये जो बार्टर सिस्टम थी, जहां वैल्यू के एक्सचेंज में वैल्यू देते थे और सभी सेवाओं के एक्सचेंज में अनाज मिलता था, ये बदल गया। एक ऐसे कागज के टुकड़े में ये शिफ्ट हो गए जिसको पैसा बोलते हैं। अभी ये कागज का टुकड़ा कैसा है, मैं आपको इसकी सिर्फ तांत्रिकता बता रहा हूं। तांत्रिकता, इसके पीछे कोई फिलॉसफी नहीं है। आज का यह कागज का टुकड़ा जो बनता है, जिसके ऊपर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे बेरर सम ऑफ रुपीज, मैं धारक को 500 रुपए या 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। हम लोगों को लगता है कि यह कागज का टुकड़ा जब प्रिंट होता है तो सरकार के पास सोना होता है, वो सोना सरकार रिजर्व बैंक के इस पे रखती है और उतने ही मूल्य की नोट छपवाती है। ऐसा हमें लगता है ना, सोने में से पैसा बनता है, ऐसा हमें लगता है ना। ऐसा नहीं है। भारत में 1956 में यह बंद हो गया। दुनिया में जो दुनिया की सबसे बड़ी डॉलर की नोट है, क्योंकि दुनिया की करेंसी है डॉलर, अमेरिकी डॉलर, सबसे बड़ी जो डॉलर की नोट है $100 की। आज दुनिया की कौन सी भी करेंसी नोट सोने के साथ जुड़ी नहीं है। सोने के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। भारत की ये जो 2000 रुपए की नोट आज हमारे हाथ पे आई है, नहीं, उसकी कॉस्ट, जो पूरी कॉस्ट है, वो 3 रुपए 70 पैसे प्लस माइनस में है। 3 रुपए 70 पैसे। वो कागज का टुकड़ा बनाने की कीमत 3 रुपए 70 पैसे। उसके ऊपर लिखा है 2000 रुपया। ये कागज को टुकड़े को हम ऐसे कैसे समझते कि इसकी वैल्यू 2000 है। ये सीरियस कंसर्न मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो आज करेंसी नोट है वो है $100 की करेंसी नोट। $100 अमेरिकी डॉलर नोट। आज अमेरिका को $100 की नोट प्रिंट करने के लिए 12 सेंट का खर्चा आता है। यानी उनकी 100 रुपए की नोट उनके 12 पैसे में बनती है, 12 सेंट। आपको ये मालूम है, जब ये $100 का टुकड़ा हम लेते हैं मार्केट से, अमेरिका का $100 का, तो उसके बदले में हम उनको क्या देते हैं? वो $100 के कागज के टुकड़े के बदले में हम अमेरिका को $100 वैल्यू का बासमती चावल बेचते हैं। वही 12 सेंट के टुकड़े के इसमें हम $100 मूल्य का हापूस अल्फांसो बेचते हैं। उसके बदले में जो कागज का टुकड़ा लेते हैं वो कितना है? 12 सेंट का, 12 पैसे का। ये कागज के टुकड़े में ऐसी क्या चीज है? ये कैसा बनता है? ये जो रुपए की नोट है, जिसके सिवा आज कुछ नहीं चलता, इसके पीछे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, सरकार की संवैधानिक ताकत या संवैधानिक अधिकार सरकार का। सरकार ने जो रिजर्व बैंक को दिया है, आप कितना भी नोट सरकार रिजर्व बैंक छपवा सकती है, हमारी इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से छपवाती है। कुछ गणितीय सूत्र होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, उसी हिसाब से ये नोट छपवाती रहती है। इसके पीछे कोई रियल वैल्यू नहीं होती, कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। भारत का गेहूं अमेरिका में चलता है या नहीं चलता है? आपको क्या लगता है? भारत का चावल अमेरिका को चलता है ना? भारत का कपड़ा अमेरिका को चलता है ना? भारत आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है अमेरिका को? आपको क्या लगता है? भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अपने जवान बच्चे, जो बचपन से हम उनको केजी में पढ़ाते हैं, उसी कल्चर में पढ़ाते हैं कि भाई तू तो एक्सपोर्ट के लिए है, वहां से तुझे डॉलर की नोट भेजनी है, तुझे तो अपने देश में रहना ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अंगूर जो बोते हैं ना, तो एक्सपोर्ट के लिए जो होते हैं तो वहां पेस्टिसाइड केमिकल नहीं डालते, क्योंकि वो जर्मनी को भेजना होता है, तो हमें 280 रुपए का रेट मिलता है। वैसे हमारे बचपन में बच्चे होते हैं 3 साल के, उनको केजी में मम्मी डैडी और गुड मॉर्निंग, क्योंकि तो हमें उनको रखना ही नहीं अपने घर में। अगर दुनिया को यह सब चलता है तो मुझे बोलिए कि भारत की 500 रुपए की नोट अमेरिका में चलती है नहीं चलती है?
भारत की 500 की नोट अमेरिका में चलती है क्या? क्यों नहीं चलती? क्योंकि वहां की कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ नहीं करती। ये कागज का टुकड़ा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पे बनता है। अगर वो सोने के साथ जुड़ा होता या कोई और तो वहां चलती नोट, नहीं चलती। तो ये कागज का टुकड़ा पहले ये है कि ये कोई नेचर से जुड़ा नहीं है। आप यहां तो अभी सभी बुजुर्ग ज्ञानी बैठे हो, हम लोग सब जानते हैं कि साइंस ऑफ रिसोर्सेज इज इकोनॉमिक्स एंड साइंस ऑफ सोर्सेस इज इकोलॉजी। पर्यावरण शास्त्र और अर्थशास्त्र ये दो अलग परिभाषा है। पर्यावरण शास्त्र क्या होता है? जो नेचर ने बनाया है वो सभी पर्यावरण होता है। स्रोतों का जो शास्त्र होता है उसको पर्यावरण बोलते हैं। नेचर ने सब कुछ बनाया। नेचर ने आदमी बनाया, पशु बनाए, पंछी बनाए, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, सब नेचर ने बनाया। ये सब पर्यावरण है, इकोलॉजी। सिर्फ आदमी जब वो सोर्स को लेता है, नेचर से स्रोतों को लेता है, उसके ऊपर प्रक्रिया करता है और सिर्फ मानवीय प्रयोग के लिए, मानवीय उपयोग के लिए जो बनाता है उसको बोलते हैं संसाधन। जैसे चावल होता है, कच्चा चावल, पानी होता है, आग होती है, ये तीनों है स्रोत यानी इकोलॉजी। ये नेचर से मिलते हैं। लेकिन पका हुआ चावल ये आदमी बनाता है, ये रिसोर्स, ये इकोनॉमिक्स है। पका हुआ चावल इकोनॉमिक्स, कच्चा चावल इकोलॉजी। हम सब साइंस की परिभाषा में अगर बात करेंगे तो कोई भी रिसोर्स सोर्स के सिवा बन ही नहीं सकता, इसीलिए उसको रिसोर्स बोलते हैं। सोर्स के सिवा बन ही नहीं सकता, वही तो रिसोर्स होता है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड एब्सोल्युटली, यू कैन चेंज द फॉर्म। आप नई तरीके से कुछ पैदा नहीं कर सकते, कुछ खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ स्वरूप बदल सकते हैं। ये नेचर से सबसे बड़ा जो आज पावरफुल रिसोर्स है आदमी के लाइफ का, वो है पैसा, और वो नेचर से होता है। ये दोनों चीज सभी कोई यूज कर सकता है, जो मीडियम हो या कमोडिटी हो, और सिर्फ एक फर्क होता है, मीडियम आप यूज करके आपके कब्जे में रख सकते हो, सब आपके साथ रख सकते हो। कमोडिटी रख सकते हो, मीडियम रख नहीं सकते आप। मीडियम आपके कब्जे में नहीं रख सकते आप। जैसे ये मेरी घड़ी है, ये मेरी है, ये वस्तु है, मैं मेरे पास रख सकता हूं, मेरे ताबे में रख सकता हूं, मैं किसी और को नहीं दूंगा, मेरी है। ये मेरा शर्ट है, ये वस्तु है, मैं यूज करता हूं, साथ रख सकता हूं, पजेस कर सकता हूं। लेकिन ये हवा ये मीडियम है, मैं यूज करता हूं, आप यूज कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता मेरी हवा है, मैं आपको यूज नहीं करने दूंगा। क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए? ये मेरी भाषा, ये मीडियम है, मैं यूज करता हूं, मैं ये बोल सकता हूं मेरी भाषा में आपको यूज नहीं करने दूंगा। मीडियम आप पजेस नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये जो रास्ता है ना, सामने वाला रास्ता जो होता है वो समाज का होता है, हम सबका। ये मीडियम है। ऊपर का व्हीकल ये अपना होता है, वो वस्तु है। मीडियम सब लोगों का, सबके यूज के लिए। यूज एंड लिव इज अ मीडियम, यूज एंड रिटेन इज कमोडिटी। अभी मैं पूछता हूं, मेरे जेब में अभी एक 500 की नई नोट है, वो मीडियम है या कमोडिटी है? क्या है? मेरे जेब में है, मेरे जेब में है। मैं 1 घंटे से यहां हूं, ना मैं यूज कर रहा हूं, किसी और को यूज करने दे रहा हूं, मेरे जेब में पड़ी है। आज यहां इतने प्रतिष्ठित लोग हैं, यहां सबके यहां जेब खाली किए जाएंगे, कम से कम 1 लाख रुपया निकलेगा यहां, कम से कम 1 लाख। तभी एक किसान वहां सुसाइड कर रहा है, क्योंकि वो बैंक में उसको पैसा नहीं मिल रहा है। यहां लेके हम बैठे हैं, ना हम यूज कर रहे हैं, ना किसी और को यूज करने दे रहे हैं।
अगर ये पैसा बैंक में होता है, मेरी 500 की नोट, तो क्या होती? क्या होती? बैंक किसी और को देती ना, जिसको चाहिए। बैंक का यही फंक्शन होता है, जिसके पास है उसको लेना, दूसरे को देना। यही तो बैंक का काम होता है, और कोई नहीं होता। ये पैसे को हमने वस्तु करके जेब में रखा है। आज तो हम नई जीवन शैली में आ गए हैं। आज जिसको हम बोलते हैं कि आज हम मार्केट इकोनॉमी में आ गए, मार्केट की लाइफस्टाइल में आ गए। आप सब जानते हैं, मार्केट में सबसे बड़ा होता है, जिसके सिवा मार्केट चल ही नहीं सकता, वो होता है ग्राहक। कस्टमर इज गॉड। मार्केट में सबसे अगर प्रतिष्ठा का कोई अगर स्थान है, वो है ग्राहक का। और मार्केट में सबसे नीचा जो होता है, मोस्ट डिस्गस्टिंग, होता है भिखारी। मार्केट में भिखारी और ग्राहक, ये दो ही जात होती है, तीसरी जात नहीं होती। भिखारी और ग्राहक दोनों के पास जरूरत होती है, नीड होती है, और सिर्फ एक फर्क होता है दोनों में। ग्राहक के पास नीड के साथ परचेसिंग पावर होती है, पैसा होता है, वो ग्राहक बन जाता है। लेकिन जरूरत है और पैसा नहीं है, तो वो भिखारी हो जाता है। हमारे देश में इतने लोगों के पास पैसा पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि नोटों में उसको कन्वर्ट करके हमारे जेब में हमने रखा है। जब वो नीचे जाएगा ही नहीं, तो लोग करेंगे क्या? 8 नवंबर के पहले आप सबको मालूम है, 500 और 1000 की नोट जो बंद कर दी है सरकार ने, 86%, 86% जो मूल्य था, बाजार मूल्य, वो बड़ी नोटों में था, वो नीचे पहुंच ही नहीं रहा था। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां $1, $2 से नीचे रोज का खर्चा करने वाले सकते लोग, $2 यानी 140 रुपए से नीचे 70% लोग हैं हमारे देश में, जिसको ग्लोबल पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। 70% पॉपुलेशन $2 के नीचे पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन। अगर 140 रुपए खर्चा ही नहीं कर सकते, तो 500 और 1000 की नोट किनके लिए थी ये देश में? वो जेब में और बोरियों में पड़ती थी। मार्केट नहीं चल रहा था, युवाओं के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो धन नहीं, वस्तु बन गई थी। दूसरी चीज, तीसरा जो पैसे का बड़ा ये था, जब ये कैश के ट्रांजैक्शन होते तो उसके कभी फुटप्रिंट नहीं रहते। अभी मैंने ये 2000 की नोट कार्ड निकाल के मेरे साथी को दे दी, कोई एस्टेब्लिश नहीं कर सकता इनके पास ये नोट कहां से आ गई। जिसके जेब में पैसा उसका मालिक, उसके ट्रेल मिलते नहीं। अगर ये पैसा मैं उनको बैंक के माध्यम से दे दूं, चेक हो या डेबिट कार्ड हो, तो मेरे डेबिट अकाउंट पे, उनके क्रेडिट अकाउंट पे उसके फुटप्रिंट मिल जाते हैं, अकाउंट ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बड़ा ये था। एक तो हमारे देश में पैसे की इतनी कमतरता हो रही है, क्योंकि वो नोटों में और बोरियों में पड़ा है। पैसे के सिवा तो दुनिया चल नहीं सकती, आज सभी चीज पैसे में बदल गई है। तो लोग क्या कर रहे हैं? आप पुणे से आ गए हो, आप बहुत नसीबवान लोग हैं। मैं वो गांव से आ रहा हूं जो आपने बीबीसी पे भी सुना है, मैं हूं लातूर का। गए साल हमारे गांव में लातूर में 4 महीने में एक बार पानी आया था। दूसरी बार तो 6 महीने के बाद ही आया था, नल को, टैप को पानी। कल आपको कोई बताएगा कि कल से आपके नल को पानी आने वाला नहीं है, आप आज क्या करोगे? क्या करोगे? आज पानी भर के रखोगे। कितना भर के रखोगे? आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। आपका डर जितना बड़ा है, अरे कल मेहमान आ जाएंगे, अरे परसों भी नहीं पानी मिलेगा तो क्या करेंगे, जितना हो सके आप पानी भर के रखोगे, है ना? किसी ने आपको बोला कि भाई टैप खोल दे, 24 घंटा आपके नल को पानी है, कितना पानी आप भर के रखोगे? अगर 24 घंटा आपके नल को पानी आने वाला है तो कितना भर के रखोगे आप? कितना? यही हो गया हमारे देश में। पैसा कब मिलेगा कल मालूम नहीं है, तो हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, क्योंकि पैसे के सिवा तो जी नहीं सकते। सबको डर है यार, मेरा तो चल गया, लेकिन अपना बेटा तो बावला है, उसको तो कुछ समझता नहीं, उसके लिए कमा के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो कैसा जिएगा?
जो कोई जो पोजीशन में है, हर आदमी पैसे के पीछे है, क्योंकि ये पैसे की साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। वो मीडियम नहीं, कमोडिटी बन गया है। हर कोई जिंदगी का मकसद बन गया कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। डॉक्टर भी वही कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम जैसे इंजीनियर भी वही कर रहे हैं। पैसे का पहला हमारा कि पैसा कमाओ। पैसा कमाने की चीज नहीं है, मीडियम कमाते नहीं है, उसको यूज करते हैं। सिर्फ हम हवा को कमाते हैं या यूज करते हैं? रास्तों को हम यूज करते हैं, कमाते हैं। भाषा को हम यूज करते हैं, कमाते हैं। क्या है मीडियम? वही होता है सिर्फ यूज करना और छोड़ देना, कमाने की चीज नहीं होती। लेकिन ये कागज के टुकड़े ने उसको एक कमोडिटी कर दी। हर कोई उसके पीछे भागने लगा, वो सर्कुलेशन से ऑफ होती गई और हमारा इतना बड़ा परिवार 130 करोड़ का भिखारी होते गया। दुनिया के सामने हम खड़े हो गए भिखारी बोल के। जैसे हमारे खून में जो नसें होती है ना, हर पेशी को वो रक्त पहुंचाती है, खून पहुंचाती है, उसमें उसको पौष्टिक मिलता है, उसको कैलोरी मिलती है। अगर आपके नसों में अगर गुठलियां हो गई तो क्या होगा? वो खून नीचे नहीं पहुंचेगा, रक्त शेवटीपर्यंत पोहोचणार नाही। ज्या पेशीपर्यंत पोहोचणार नाही त्या पेशी मरायला लागतील। आपला शेतकरी मरायला लागलाय, पैसा पोचत नाहीये। शेतकऱ्याला फक्त कष्टाची भाषा कळली आहे। त्यांनी जर जास्त कष्ट केले तर उत्पन्न जास्त निघायला लागलं, बाजारात भाव कोसळायला लागले, मरायला लागला शेतकरी। त्यांनी जर कमी कष्ट केले तो उत्पन्नच निघत नाहीये, विकायलाच का नाही, मरायला लागला शेतकरीच। उसको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आई थी, मेहनत की भाषा। वो पैसा जो था उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कागज का टुकड़ा है ही नहीं सही। 3 रुपए के ऊपर आप 2000 रुपए की वैल्यू एंडोर्स कर रहे हैं। कौन सा ये कागज का टुकड़ा? क्या है इसके पीछे? हम कृषि संस्कृति के लोग हैं, हम पैसे को समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। ये भी एक जरूरी रीजन था, ये नोटाबंदी क्यों हो गई इसके लिए। और भी है, जैसे भारत में अगर 3 रुपए में 2000 की नोट भारत छपवाता है, तो क्या पाकिस्तान भारत की नोट नहीं छपवा सकता? जो देश मिसाइल बना सकता है वो क्या भारत की नोट नहीं छपवा सकता क्या? और मुझे बोलो, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है 3.5 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको 1997 रुपए का प्रॉफिट दे? है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट? कौन सा प्रोडक्ट है ऐसा? 3 रुपयाच्या इन्व्हेस्टमेंट मध्ये तुम्हाला 1997 रुपयाचं प्रॉफिट देणारा कुठला प्रोडक्ट है? ये करेंसी नोट होती है, वो नोट एक है लेकिन बहुत हाई सेंस प्रोडक्ट है। इसके ऊपर देश का कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे देश में ये चलता है। ये कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गए तो क्या होगा? हम सब जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान का पड़ोसी जो अफगानिस्तान है, पूरा ध्वस्त राष्ट्र है। ये पहले सोवियत यूनियन ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, बाद में अमेरिका ने उनको तो पूरा ध्वस्त ही कर दिया। आज अफगानिस्तान के पास सिर्फ 2 चीज है दुनिया को देने के लिए, एक है आतंक और दूसरा है ड्रग्स, कोकेन, मॉर्फिन। ये कोकेन और मॉर्फिन जो ड्रग्स है, वो पाकिस्तान के जाली नोटों के माध्यम से हमारे पंजाबी युवा तक पहुंचते हैं। उसका कस्टमर, कंज्यूमर जो है वो हमारा पंजाब का युवा है। 50% तक वो अटक गया है वहां। ये सही में हंसने की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस है, क्योंकि वही पुलिस की गाड़ी से ये नोट आती है और वही पुलिस भी यूज करती है। और इसके नेशनल सर्वे हमने नहीं किए, इसके सर्वे हमारे नहीं है। आप जिस तरीके से सर्वे लेना आप ले लो, लेकिन आपको तो मानना पड़ेगा कि ये कागज के टुकड़े फुटप्रिंट रखते नहीं पीछे। इसको जाली नोट बनाना आसान है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये कमोडिटी आपको मानना पड़ेगा, नीचे तक नहीं जाते आपको मानना पड़ेगा। ये सभी इसके टेक्निकल रीजन है जिसके लिए इसको बंद करना चाहिए था। ये अर्थक्रांति की मान्यता थी। ये पूरा खून शरीर में घूमना चाहिए, आखिरी पेशी तक जाना चाहिए, तभी ये बचेगा देश। हमने सिर्फ आप जिस लोग आवर्ते से इनकी बात कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं,
अमर्त्य सेन बोल रहे हैं कि ये गलत है। यही अमर्त्य सेन है जिन्होंने लिखा था कि भारत में जो इतने भूख बलि जो हो रहे हैं उसका रीजन भारत की प्रोडक्टिविटी की कमतरता नहीं है, तो उसका रीजन है उसके पास क्रय शक्ति की कमतरता है। मैं बराबर कह रहा हूं क्या गलत? अमर्त्य सेनला ज्यांनी कोट करताय त्यांना पहिल्यांदा माहिती आहे अमर्त्य सेनने त्याच्यावर मांडणी केली आहे की भारतातल्या भूकबळीचं कारण भारतातली उत्पादनातली कमतरता नाहीये तर क्रय शक्तीची कमतरता आहे। मग ह्या अमर्त्य सेननी ती क्रय शक्तीची कमतरता हे कशासाठी त्याच्यावरचं उत्तर नाही दिलं। अगर आप डायग्नोसिस कर सकते हो तो आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते? रोगॉफ का केनेथ रोगॉफ उनका कोट हो रहा है कि केनेथ रोगॉफ ने उसको अपोज किया। यही केनेथ रोगॉफ ने लिखा है कर्स ऑफ करेंसीज। ये $12 की जो नोट है 12 सेंट में $100 की नोट पूरी दुनिया का वो संसाधन बन गई आतंक का। नॉर्थ कोरिया पे जिसने दुनिया ने सैंक्शन डाले हैं वो नॉर्थ कोरिया जो मिसाइल बना सकता है वो डॉलर की नोट नहीं बना सकता है क्या? कर्स ऑफ कैश करेंसी में ये भी है। अगर दुनिया के आतंक को कंट्रोल करना है तो आपको करेंसी नोट को कंट्रोल करना चाहिए। भारत आज 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, दुनिया में इतना ज्यादा जीडीपी भारत का है और भारत की नोट कन्वर्टेबल है डॉलर में। यह हवाला से जो आतंक के पास पैसा जा रहा है दुनिया के शांति को खतरा है। ये भी एक रीजन है जो नोटबंदी के बारे में हम बोल रहे हैं। जो गरीबों तक नहीं पहुंचती, ये नोट हमारे देश ने तैयार की है। जो गरीब तक पहुंचनी चाहिए उसका हक है उसके ऊपर। बड़ी मूल्य में रख के जेब में रख के ना हम यूज कर रहे हैं ना किसी और को यूज करने दे रहे हैं। क्यों है ये प्रेजेंटेशन सिर्फ इसके लिए नहीं है। अर्थ क्रांति क्या कहती है, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिए? अर्थ क्रांति ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है ना गवर्नमेंट के साथ है। हम लोग कौन है? ये गवर्नमेंट हमारी है नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति बोल के हम इसको नहीं देखते। ये हमारे देश की गवर्नमेंट है, ये संस्था है। हम मोदी जी को नहीं, हमारे पंतप्रधान को हम मानते हैं, वो इलेक्टेड है। कुछ लोगों ने हमें इतने व्यक्तिगत लेवल पे लाके रखा है कि वोकिल और नरेंद्र मोदी, क्या बात है ये? अर्थ क्रांति और देश की अर्थव्यवस्था, ये क्या बात है? ये देश हमारा भी है और हमारे देश के भला के लिए हमारे भी सुझाव है। ये आज के नहीं है, 20 साल से है, ये हमारे सुझाव भी है। आखिरी आदमी तक ये पहुंचना ही चाहिए, इसलिए नोटाबंदी का ये रीजन था। अभी दूसरा एक है कारण, जो खोखली होती हुई अर्थव्यवस्था हमारे युवा तक पहुंच नहीं रहा है। यह सबका समाधान देगा कौन? हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं। ये लाखों की इसमें जो मार्च निकल रहे युवाओं के, कुछ बातें किए बगैर वो आ रहे हैं रास्ते पे। क्या मांग रहे हैं वो? क्या मांग रहे हैं? भविष्य के दरवाजे खुले मांग रहे हैं ना, और क्या मांग रहे हैं? और उसके ऊपर कौन जवाब देगा? सिर्फ यह जवाब सॉल्यूशन पे करना, क्रिटिक करना बहुत आसान है। सॉल्यूशन रखने के लिए भी एक चाहिए। यह हमारा देश है, सॉल्यूशन रखना पड़ेगा। दुनिया का सबसे युवा देश आज हमारा है। 29 साल हमारी औसतन वयोमर्यादा है। आयुष्यमान तो 70 साल का है। ये युवाओं को अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, उसको एक डिग्निटी नहीं दे पाएंगे लाइफ की, तो क्या बनेगा ये देश? हमारे युवा जो असेट होंगे, अगर उनको परचेसिंग पावर मिलेगी तो उनसे अगर आप परचेसिंग पावर निकाल रहे हैं तो वो भिखारी बनेंगे, तो लायबिलिटी बन जाएंगे। आज वो एक परिवार व्यवस्था से आ रहे, इसलिए इतने शांति से वो मार्चेस निकाल रहे हैं। अगर ये परिवार व्यवस्था नहीं होती ना, तो आज हम लोग यहां इसे बैठ नहीं सकते थे, सही में नहीं सकते थे। सिर्फ परिवार व्यवस्था जो है हमारे 130 करोड़ के अंदर जो है, एक धागा है, एक बहन का धागा है, एक भाभी का धागा है, एक माँ का धागा है, आंख में है कि माँ मुझे पूछेगी कल रात इतना देर क्यों आ गया। ये डर है अंदर। अगर हमें समझना है कि अर्थशास्त्र क्या, देश का पालक होता है सरकार। सरकार कोई व्यक्ति नहीं होता, एक संस्था होती है।
और ये सरकार, ये पालक हमारा कब मजबूत होता है? जब हमारा कंट्रीब्यूशन देते हैं हम अपना घर चलाने के लिए। मैं कमाता हूँ, मेरा छोटा भाई कमाता है, उसका छोटा भाई कमाता नहीं, वो अभी पढ़ रहा है। मैं कमाता हूँ, मेरे माँ बाप को मुझे पढ़ाई चाहिए कुछ तो छोटे भाई की पढ़ाई होगी। यही जब हम देश बोल के देते उसको टॅक्स बोलते हैं। कर म्हणजे आपण देशाला जे कॉन्ट्रीब्युशन देतो, कारण देशामध्ये जे गरीब आहेत, आपल्या देशाचे परिवाराचे ते मेंबर आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे। अभी ये कर व्यवस्था के प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है मैं बता रहा हूं। हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो परिवार कैसा बिखर जाएगा ना, गरीब हो जाएगा। वैसे अगर जिनके पास पैसा उन्होंने सरकार को नहीं देगा तो देश गरीब होगा, भिखारी होगा, हो रहा है। यह टैक्स कैसा होना चाहिए? पूरी देश, पूरी दुनिया हजारों सालों से इसके ऊपर ढूंढ रही है कि हमें तो देश चलाना है, समाज चलाना है, तो उसके संरक्षण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना है। यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट अलग आ जाते हैं। एक है बाहर के बाहर का, जिसको अभी दुनिया जिस पे चल रही है, जिसको बोलते हैं एडम स्मिथ स्कूल ऑफ थॉट। उन्होंने टैक्स की परिभाषा ऐसी की है, टैक्स इज अ मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। वो सक्ति का सहभाग है, देश चलाने के लिए आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके डिफेंस के खर्चे देने हैं, लॉ एंड ऑर्डर के देने हैं, तो आपको सरकार को पैसा देना पड़ेगा। मैंडेटरी और कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड एक ही डेफिनेशन में है। जो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, और इस फ्रिक्शन की वजह से पूरी दुनिया में टैक्स डिवीजन चलता है, इसको काला बजट। आप तीसरे दिन बोलेंगे मुझे नहीं होगा, मैं नहीं कहूंगा। आदमी की ग्रेविटी होती है कंपल्शन के अगेंस्ट। आदमी का नेचर है कंप्लायंस को रेजिस्ट करने का, और दुनिया में ये टैक्स का जो होता है इज अ मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी वो कंप्लायंस है। इसलिए दुनिया में काला पैसा बनता है, इसलिए पूरे टैक्स केवल दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं। सिर्फ भारत का पैसा वहां नहीं है, अमेरिका का है, यूरोप का है, क्योंकि काला पैसा दुनिया में बनता है। एक धारणा ये हो गई टैक्स के बारे में। दूसरी धारणा है जो कौटिल्य स्कूल ऑफ थॉट ने दी है, टैक्स कैसा होना चाहिए? जैसे मधुमक्खी होती है, फूल से शहद लेती है, फूल को तकलीफ दिए बगैर, लेकिन उसी वक्त फूल का पॉलिनेशन यानी पराग सिंचन करती है, यानी वो एक्सचेंज होता है, कंप्लायंस नहीं। फूल शहद देता है, उसके बदले में उसका पराग सिंचन होता है, एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज जो होता है वो प्रो ग्रेविटी होता है आदमी के, वो कभी एंटी ग्रेविटी नहीं होता। आज अगर दुनिया को अगर हमें बदलना है तो हमें बोलना पड़ेगा कि रोगाफ नहीं, अमर से नहीं। हमारी धारणाएं भी कुछ तो अलग परिवर्तन देगी। अनिल वकील नहीं, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये कृषि संस्कृति की बात हो रही है। दुनिया में जो अच्छा है हमें लेना चाहिए, दुनिया की टेक्नोलॉजी हमें लेनी चाहिए, लेकिन हमारी भी सिस्टम है कि जो दुनिया को लेनी चाहिए, ये है हमारी टैक्स सिस्टम। अगर हमें नई परिप्रेक्ष्य में आधुनिक दुनिया में जीना है तो बाजार भी हमारा बड़ा हो गया। जैसे हमारे परिवार होता है ना, परिवार में बाप होता है, वो सरकार होती है, और बड़ा भाई यानी बाजार होता है, बड़ा भाई सबसे। अब मुझे बताइए कि अगर बाप से अगर बड़ा भाई अगर बड़ा होने लगा और तगड़ा होने लगा तो क्या होता है? बड़े भाई की बीवी एक दिन बोलने लगती है कि चलो हम बाजू रखेंगे, ये कितने दिन इनका संसार चलाते रहेंगे, है ना? बाप का होता है वो हक का होता है, भाई का होता है वो एहसान का होता है। आपको क्या लगता है? परिवार अच्छा चलाना है तो बड़े भाई को भी छोटा नहीं करना है, लेकिन बाप को उससे भी बड़ा रखना है। क्या आप मानते हो? नहीं मानते इसको? क्योंकि बाप की सभी जिम्मेदारी होती है। जो बच्चा अभी छोटा है, जो अभी चल नहीं पा रहा है, उसको संभालने की गवर्नमेंट की ताकत और बढ़ गई। मार्केट छोटे होने लगा तो वो सोशल वेलफेयर को फिनिश, पर्सनल राइट कुछ नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं, जो भी है सरकार का। चाइना, वेनेजुएला, आप व्यक्तिगत कुछ नहीं, जो बोलेगा सरकार, बाकी है नहीं। इसके उल्टा अगर मार्केट जीतने लगता है पहली बार,
तो मार्केट सिर्फ पर्सनल ग्रोथ को देखता है, वो सोशल के लिए नहीं होता। मार्केट आपके पास एफिशिएंसी, आपको पैसा देगा, आपके परिवार के लिए नहीं, आपके लिए। मार्केट इंडिविजुअल की एफिशिएंसी देखता है, उसका सोशलॉजी का कोई मतलब नहीं। ये हो सकता है कि मेरा इनकम बढ़ गया तो मेरा परिवार अच्छा जीलेगा, ये बाय प्रोडक्ट है, ये मार्केट का लुकआउट नहीं है।